Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Aisha Khan, also known as Grow with Red Wings. So this name in particular I not searched actually, मैंने रखा because I was in an airline where my uniform was of red color and my wing was also of red color. So इसलिए मैंने मेरा ये नाम रखा. Leave that all, no time for all this fuss about. Let's focus on how I became a cabin crew. So yes, let's start. So I was very confused about the language in the video, so today I am using Hindi and English both, just for the satisfaction of the viewers, nothing in particular. So let's start with English, which is Hindi and English. So yes, my story starts when I was 6 years old. छोटी थी, nothing in particular. Father दूर रहते थे. So because of that thing only, I decided that I want to be an air hostess. क्योंकि उस टाइम पे cabin crew अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले. This terminology, there was no word like cabin crew before that I was aware of. So उस टाइम पे हम लोग एयर हॉस्टेसेस बोलते थे. सो हम क्योंकि उस टाइम पे लड़के भी नहीं होते थे तो लड़कियां ही होती थी, तो ये वर्ड कैबिन क्रू अब आया है. उस टाइम पे मैंने सोचा था मुझे एयर हॉस्टेस ही बनना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले कैसे बनते हैं, क्या होता है. उस टाइम पे बस इतना पता था ग्लैमरस लाइफ होती है, मेकअप करो, फ्लाइट पे जाओ, एंड दैट्स इट. यू गेट गुड सैलरी एंड perks, benefits and all. Nothing much, nothing more. So how this story began was after my completion of 12th, when I did my 12th. At that time I was 18. तो मैंने स्टार्ट कर दिया. मैंने बनाया, सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाया. आई सर्च द इंटरनेट, देखा कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ कैबिन क्रू के ओपन डेज हैं. उस टाइम पे माय ड्रीम एयरलाइन इन डोमेस्टिक वाज एयर एशिया इंडिया. अब ये एयर एशिया इंडिया जो है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट. तो यहाँ पर मैं ये बोलने वाली थी जो मैं भूल गई कि हाँ, उस टाइम पे मैंने इंटरनेट सर्च किया और कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है, मैं बता रही हूँ, कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया, क्योंकि सबका दे चुकी थी. तो द वेरी फर्स्ट एयरलाइन फॉर विच आई गेव माई इंटरव्यू वॉज गो एयर. आई वेंट बहुत ही अच्छे से ग्रूम होकर, बिल्कुल वाइट शर्ट, ब्लैक स्कर्ट, and then watch, grooming, bun, everything, makeup done, everything was good. So what happened there? Okay, let's start. There were a lot of people, like 1,000 to 2,000 people were standing in line, and you know the requirement, you will have to meet the height criteria, and I am fortunate that I am meet the height criteria. So go air के बारे में इतना नहीं पता था, गई. अब इतना नहीं बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ. रिजेक्ट होकर वापस आई थी. रिजेक्शन ही बोलूंगी मैं उसको, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी एयरलाइन एक सजेशन देने के बाद दैट यू कैन कम इन अप्रैल और वो ये बोले कि नहीं आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, बट देयर इज दिस वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट योर स्किन और योर मार्क दैट यू नीड टू कंसील and then you can come for the interview again. So for me that was a rejection and I was completely happy with that कि rejection हुआ, क्योंकि सोच कर तो मैं यही गई थी. बट सच्चाई ये है कि मैं सोच कर गई थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी. There were a lot of people in my life जिन्होंने बोला था कैबिन क्रू ऐसे ही बन जाते हैं यार, nothing much to do, because they did not know what a hassle it is to go for the interview, do all the rounds, and then you get rejected, and then come back home, and then you need motivational speaker and all, someone to guide you through. And I had nobody.
सीरियसली नोबडी। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। गो एयर ख़त्म, वापस आई घर पर। आफ्टर गो एयर, स्पाइस जेट। Okay, there were open days for SpiceJet. There was no Spice Star Academy at that time, so I went for the interview in SpiceJet. गुड़गांव गई, फैमिली साथ गई थी। वहाँ जाकर इंटरव्यू दिया। They said, so the thing is, they hired the experienced cabin crew. Rejected me. So after that, Indigo. I went for the round of Indigo interview and all. I went for interview thrice. Then I got rejected and came back home. I was very disappointed, I must say, because 18 का होते ही ना, I was like, okay, I will give interview and then I'll get selected and that's it. Then I will have the highest paid job, easy to do and all ना. फैंटेसीज जो होती हैं लोगों की, अपने ख्वाब देखते हैं, पूरे नहीं होते हैं, देन घर आ जाते हैं, रोते हैं, होते हैं. सेम थिंग हैपन विद मी, बट मैं रोई नहीं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि पता चल चुका था कि इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ कैबिन क्रू. वो भी जब आपको इतने सारे लोगों ने बोल रखा हो, नहीं नहीं नहीं, यू विल बिकम, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द एनर्जी, you have the looks and all. nothing works sometimes, you know. So इंडिगो में 3 बार गई थी, रिजेक्ट होकर वापस आई थी. फिर ऐसा हो गया, विस्तारा में गई, रिजेक्ट होकर वापस आ गई. I met a lot of people, I don't know, during the interview also and in life also. बहुत लोगों से मिली जो रिजेक्ट होकर आए थे. बेचारों ने कुछ ना तो पता नहीं कितनी बार दी हो, अभी तक वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं एंड दे आर नॉट सिलेक्टेड. तो ये कहना मुश्किल है कि कैबिन क्रू बनना ईजी है. देयर इज़ नथिंग, नो वर्ड इज़ in my dictionary, there's no word as easy. Okay, तो हुआ ये कि फिर एयर एशिया आई. एयर एशिया तो मेरा ख्वाब थी कि ड्रेस ग्लैमरस, रेड ड्रेस, red skirt, then you have the compression top white, and then over there there's a jacket red colored, your whole figure and all, you're looking so pretty. ठीक है, तो अब मैं गई उसके लिए, एयर एशिया के लिए गई, डॉक्यूमेंटेशन दिया. हाँ, to become a cabin crew you need a resume which has to go through their ATS system, I guess. Yeah, that has to go through. So be mindful when you make your resume. Please do, what do you say, do have all the keywords that the company's website recommends you to. Okay, that what are they looking for and all, so that your resume get through the whole process and there's nothing, so I mean there's nothing, क्या बोलते हैं उसको, there's no obstruction. Yeah, ठीक है. After that what happened, गई, there were 4,000 people. ठीक है, बहुत लंबी लाइन थी एंड एवरीबडी वाज सो वेल ग्रूम्ड एट दैट टाइम. एयर एशिया लड़कों को भी हायर करती थी, तो लड़के भी थे, लड़कियां भी थी. और मैं जिस स्कूल से एजुकेट होकर निकली थी, 10th एटलीस्ट, वहाँ पर सिर्फ लड़कियां थी. एंड देन 12th में लड़कियां थी. तो आई वॉज अ लिटिल बिट सेल्फ कॉन्शियस व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. तो क्या हुआ था, एयर एशिया के राउंड सबको पता है. वहाँ पर फर्स्ट द डॉक्यूमेंटेशन, देन you will have to walk, catwalk round. That is what you have to do. You have to walk. See, that is not particularly catwalk. Okay, जो वो देखना चाहते हैं वो ये कि आप ठीक से चल पा रहे हो या नहीं. Some people cannot walk straight, or some people have some kind of disability. That is what they are looking for. They are not looking for models. ठीक है, तो catwalk लोगों को यही आता है दिमाग में कि catwalk means you'll have to walk like model. No, you'll just have to walk straight towards them. That's it. Nothing rocket science वाला ना. ठीक है. After that what happens? Please, I think I'm not well these days because ये बाद में बताऊंगी क्या था in the end. Okay. ठीक है. Actually I have made all the notes and also
for this video. First time YouTuber and all. Oh, so ठीक है, let's get to the point. गई, reject होकर आ गई. Not in the catwalk round, but there was this English test जिसका ना मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे. The English test was like this, that is known as versant English test, जिसमें ना आपको सुनना होता है and then you'll have to answer. बट उसके लिए ना आपका सुनना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको हेडफोन्स या एयरफोन्स चाहिए होते हैं, जो मेरे पास थे नहीं. Because of which I could not hear a single word which was coming out of my phone. ठीक है, तो I got rejected because I could not meet the criteria or the percentage which they required to clear that particular round. तो रिजेक्ट होकर वापस आई. Then again AirAsia came and then again I went for the interview and what happened is that I had a burn mark here. Okay, एक दिन पहले ना बड़े शौक से खाना बना रही थी और जल गया हाथ और मेरे ना मार्क आ गया वहाँ पर. इट इज़ अ गुड थिंग कि मेरे बॉडी पे मार्क्स इतने मतलब काफ़ी टाइम नहीं रहते, बट अब ये भी नहीं कि आज लगा तो कल गया, नहीं ऐसा नहीं है. बट वो था जैसे मेरा आज हुआ मार्क एंड देन कल मेरा इंटरव्यू है. मैंने पहले सोचा यार नहीं जाती. देन माई फादर एंड माई मदर दे वर बोथ लाइक कि नहीं यार जाओ, एटलीस्ट ट्राई. हाँ, अगर रिजेक्ट होकर भी आते हो देन एटलीस्ट यू विल बी लाइक ओके आई गेव माई 100% एंड आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, सिंपल, दैट्स इट. तो मैं गई एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. In the catwalk round, I went and she checked my hand. So you'll have to show your hand like this. Okay? So, and sometimes like this also. I don't know how to show that to you. ठीक है? तो यहाँ पर वो मार्क था and she asked me, how did you get this? And मेरे मुंह से बर्न मार्क की जगह निकला बर्थ मार्क. ठीक है, और जब आप एक बार बोल देते हो देन ऐसा हो जाता है ना अंदर से यार अब रहने दो, यही बोलते हैं ना, ये नहीं होगा है ना. तो उनके साइड में एक और रिक्रूटर बैठी थी, उन्होंने भी मेरा हाथ चेक करा एंड शी सेड नो इट्स नॉट अ बर्थ मार्क, इट्स अ बर्न मार्क. ओके, एंड आई गॉट रिजेक्टेड अगेन एंड आई केम बैक होम. ठीक है, देन आई वॉज फीलिंग सो stupid कि मैंने क्यों नहीं बोला that I got this mark because I was cooking yesterday and all ना. वही जब आप रिजेक्ट होकर आ जाते हो तो आपको फिर वही बहुत सारी चीज़ दिमाग में आ रही होती है कि यार ये बोलना चाहिए था. कुछ नहीं होता. ठीक है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गए, वापस आ गए, कोई बात नहीं. रो लिया अच्छे से भर कर ना कि ना आप पता नहीं कब एयरएशिया आएगी ये वो करके. फेवरेट एयरलाइन, ड्रीम एयरलाइन डोमेस्टिक में तो एटलीस्ट. तो then I went again for the same airline, AirAsia India, but the thing was 2 साल तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था. 2018 I gave all the interviews, then I did nothing in 2019 and 20. I concentrated on my studies, I did my graduation करके ना, I enrolled myself in the graduation program. फिर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद क्या हुआ था कि आई एयरएशिया. ठीक है, उससे पहले इंडिगो आई, मैंने इंडिगो के लिए दिया, यू नो. देन एयरएशिया आई. उस दिन ना आई वॉज नॉट इन द मूड. ठीक है, कुछ तो हुआ था घर पे ऐसा कुछ ना, दैट आई वॉज, हाँ, आई गॉट pimples, 3 pimples a day before the interview. Okay, and you need clear skin when you go for the interview ऐसे करके. That is what I heard. But if you conceal your marks then there is nothing to worry about. But शुरू से ही I was blessed with clear skin. ये ना flying करने के बाद you get थोड़े से marks and all. तो that is it. हाँ, फिर AirAsia आई, मैंने इंटरव्यू दिया. मैं AirAsia का ना कभी भी ओपन डे नहीं होता था. You have to apply for it. If you get shortlisted, then only you have to go to the interview. Then you get the chance to present yourself in front of the recruiters. उससे पहले कुछ नहीं, nothing.
ठीक है, तो मैं गई एयर एशिया का इंटरव्यू जब हुआ था, आई गॉट द मेल दैट आई एम शॉर्ट लिस्टेड एंड आई गॉट हैप्पी कि एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो हुई मैं, क्योंकि एक बार आया था तब आई डिड नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, हाँ, आफ्टर दैट गई इंटरव्यू के लिए। उस दिन गया था ना, आई वॉज नॉट इन द मूड बिल्कुल भी ना। मेरा था यार नहीं, मैं आई वॉज टेलिंग माई मदर कि नहीं यार मैं ना रिजेक्ट होकर ही आऊँगी, वाई आर यू डूइंग दिस, हाँ क्यों लेकर जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव तक जाने में इन द मॉर्निंग तो इट्स समथिंग 400 और 500 समथिंग। तो आई वाज लाइक क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा ना, फिजूल है, आई नो आई विल गेट रिजेक्टेड एंड ऑल ना, एंड कम बैक होम। तो मैं मदर वाज लाइक कोई नहीं, चलते हैं, देते हैं इंटरव्यू, क्या पता हो जाए, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ना आज की, हो जाएगा ना। आई वाज लाइक आने दो इनको फीलिंग मुझे पता है क्या होगा। तो मैं गई, आई वेंट, और उस दिन ना मेरा छोटा भाई है, उसके ना हेडफोन्स में लेकर गई थी, सो दैट ना मेरे को किसी और की आवाज़ ना आए। नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लेकर गई थी कानों पे लगाने के लिए फॉर दैट इंग्लिश राउंड। उससे पहले पर मुझे पता था मैं रिजेक्ट होंगी। ठीक है, तो कोई नहीं, गई मैं सुबह 5, इंटरव्यू 6 बजे से, मतलब योर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स। ठीक है, मैं 5 बजे ना मैं 5 बजे वेन्यू पे पहुंच गई थी। इट वॉज, आई डोंट नो द नेम ऑफ द होटल, आई डोंट नो, इट्स इन गुड़गांव। ठीक है, वहाँ मैं गई थी इंटरव्यू के लिए। जब वहाँ पहुँची हूँ, ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टैंड इन द लाइन। ठीक है, जब वो लेकर जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, यू विल हैव टू शो योर पासपोर्ट, आधार कार्ड, योर पैन कार्ड एंड योर 10th 12th सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड ऑल। तो मैं सबसे पहले थी। ठीक है, मैं 1 घंटा वेट किया। उस दिन ना द ग्रूमिंग जो मैं करके गई थी, आई ऑलवेज यूज टू मेक बन ऑफ माई हेयर ना, यहाँ तक कैसे करके। उस दिन मैंने मेरे बाल खोल रखे थे, यहाँ से ऐसे पिन अप, यहाँ से ऐसे पिन अप, ऐसे करके आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। दैट आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, क्योंकि आई गॉट टू नो कि यू कैन वेयर ब्लैक ड्रेस ऑल्सो व्हेन यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ एयर एशिया ओनली। ओके, तो मैं ड्रेस पहन के गई थी, अच्छे से ग्रूम होकर गई थी। पिंपल तो दिख रहे थे, दिख नहीं थे वो। आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट दैट डे। तो पहुंची, इंटरव्यू के लिए गए। अब जब वहाँ पर गए तो पता चला बहुत सारे लोग हैं। दैट डे ऑल्सो 4000 पीपल वर देयर। डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए, वो हर बार होते थे। देन उसके बाद हाइट के लिए ना, दे मेक यू स्टैंड ऑन समथिंग, आई डोंट नो, देयर इज मशीन एंड दे पुट अ बार above your head ऐसे ना, to measure your height. So my height at that time, what they measured was 157, but in reality it was 159. I am now 161 161 centimeter. So I don't know कैसे क्या, जो भी, I think flight से थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, कुछ भी। तो then there was catwalk round, and my catwalk round was taken by the head of the Air Asia India. Catwalk round was taken by Miss Megha. तो मैं गई कैटवॉक राउंड के लिए। उससे पहले एक फनी इंसिडेंट हुआ था। एक क्रू ने ना, ही आई थिंक उसका ना वो फर्स्ट रिक्रूटमेंट इवेंट था तो व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ एयर एशिया इंडिया, तो आपको वहाँ पे क्रू भी दिखते हैं, क्योंकि वो आते हैं इवेंट के लिए एंड ऑल। तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगाने की जगह ही स्टैम्प्ड माय रिस्ट। ओके, एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट लकी फॉर मी, क्योंकि जब मैं गई थी मेरे कैटवॉक राउंड के लिए, तो मिस मेघा सिंह ने आस्क्ड मी व्हाट इज दिस, हाउ डिड दिस हैपन, एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी, द क्रू वाज आई गेस न्यू, he had to stamp on my documents, but by mistake he stamped my wrist. And she was laughing and I was laughing, and then I went into the other room to wait. She made me read a paper before that, a pamphlet in Hindi and English, just to check the communication or the pronunciation of the words. So after that, what happened, she said okay, wait in another room. मैंने wait किया,
Then I get to know that I got selected for the first round. I cleared it. Okay, good, good, good. Happy, happy, happy. Then मैं नीचे गई. उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम दिया था कि ना 2 घंटे बाद आओ ऐसे करके ना, ऐसे 3 घंटे कुछ ऐसे बोला तो था कुछ, आई डोंट रिमेम्बर. अब 1.5-2 साल हो गए. ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन. मैं नीचे गई, मैंने मेरी मम्मी को बताया ओके फर्स्ट राउंड क्लियर. शी वाज लाइक ओके, मैंने बोला था. मैंने कहा डोंट वरी, हाँ दूसरे राउंड में रिजेक्ट होकर ही आऊँगी. एंड द सेकेंड राउंड वॉज इंग्लिश टेस्ट. ठीक है, इंग्लिश टेस्ट, हाँ इंग्लिश टेस्ट ही. बट वो ना होता क्या है वहाँ पर ना, कि लोग बहुत होते हैं यार, बहुत लोग होते हैं. तो ना इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता ही है. आपका पूरा एक दिन जाता ही जाता है. अगर आप जाते हो अपने कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, आपका एक दिन खत्म होता ही होता है. ठीक है, जस्ट 2 दिन के थे वो इंटरव्यू. फाइनल राउंड वाज ऑन द सेकेंड डे. तो पहला दिन क्या हुआ था, हम लोग गए, इंटरव्यू दिया एंड ऑल. फिर इंग्लिश टेस्ट हुआ मेरा 2 घंटे बाद. आई वेंट फॉर द इंग्लिश टेस्ट. तो आई दैट डे ना आई मेड माई माइंड कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि यूजुअली व्हाट आई यूज टू डू इन द इंटरव्यू ना, आई यूज टू टॉक विद पीपल. उससे क्या होता था ना, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो मैंने उस दिन सोचा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीबडी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई वॉज स्माइलिंग द होल डे बट आई डिड नॉट टॉक टू एनीबडी. I went for the English test. They gave us some pin code number and all, the site, everything. ठीक है, I put my headphones, noise cancellation headphones, and it is not a promotion. It is not a promotion. I'm just telling you that if you're going for any English test, please keep your noise cancellation headphones, because एक रूम के अंदर 200 लोग अगर होंगे, you will not be able to hear anything. I am telling you personal experience, क्योंकि रिजेक्ट हुई थी एक बार, तो आई नो. ठीक है, तो इंग्लिश टेस्ट हुआ एंड आई वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. देयर वॉज, I don't remember the name of the person, but he was like, oh my god, you have to, you come with the headphones. I said yes, because you know there are a lot of people and you won't be able to hear anything if you put your earphones. Okay, तो अच्छे से दिया, इंटरव्यू हुआ, राउंड हुआ. देन आई गॉट माई मार्क्स. ठीक है, वो ना हुआ ये था, अब जो मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, तो आपको मार्क्स आपका फौरन दिख जाता है इन ऑन द स्क्रीन. हाँ, आप यू लॉग इन एंड देन यू विल गेट योर मार्क्स इफ़ यू पास और इफ़ यू फेल, ऐसे करके ना. बट उसे मार्क्स थे, पास फेल नहीं बताया था उन्होंने. सिर्फ क्या करा, मेरे को लगा मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरा आया था बैंड में 6. I got 6. I don't know out of what or which thing, but मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, पहले बता दे रही हूँ. ठीक है, तो हमारा उन्होंने बोला ओके नाउ यू वेट, क्योंकि सबका करना था इंग्लिश टेस्ट, सबको बताना था ये नो एंड ऑल. तो इंटरव्यू हुआ, राउंड क्लियर हुआ, तो हम लोगों को ना बिठाया. ठीक है, देन दे वर लाइक पीपल विद स्कोर ऑफ बैंड 6 कम हियर, ऐसे करके ना सेक्शन से. तो वो लोग, हम लोग उधर गए. देन दे वर लाइक पीपल विद बैंड 5 कम हियर, एंड देन पीपल विद बैंड 4 कम हियर, ऐसे कर करके ना सिट हियर, ऐसे करके. देन व्हाट दे सेड दैट पीपल विद बैंड 4 और 5.9 कम विद अस. ओके, अब मुझे लगा आई थिंक ये लोग ना सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ ना कम आना था, कम इज लेस इज मोर करके ना. आई वॉज थिंकिंग. Then they came and I guess we were 10 people. Okay, तो उनमें नहीं, we were 20 people before what they said, what I'm telling you, before उनको ये बताने से पहले हम लोग 25 लोग थे. जब उन्होंने ये बताया कि आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स who have come from इंदौर, मुंबई और कोलकाता, raise your hands. हम उन लोगों ने करा. सो दे वर लाइक ओके यू ऑल गॉट थ्रू दिस इंग्लिश टेस्ट, अब आपका फाइनल पैनल इंटरव्यू होगा, आप लोग यू प्लीज कम विद अस. ठीक है, तो बचे थे 10 लोग, हम 10 लोग. ठीक है, एंड दे वर ऑल लाइक, उस टाइम पे रात के 9 बज चुके थे. ठीक है, 9 बज गए थे. ये सारे राउंड्स होते ना, आपको पता भी नहीं चलता, लंच भी होता है, ये भी होता है ना, वो भी होता है. एंड 4,000 पीपल, कैन यू इमेजिन. ठीक है,
उसके बाद दे वर लाइक कम विद अस. देन हम लोग बैठे थे, मुझे लगा रिजेक्ट हो गए. हो गया, आज तो काम हो गया, डन. ठीक है. देन दे वर लाइक ओके, योर इंग्लिश टेस्ट, यू हैव passed your English test. And I was so happy. I was so happy. The happiness was so clear on my face. They were like, okay, you're so happy. I said, yes, I am. After getting rejected all this time, now I got selected, or I've just cleared this round. I'm feeling as if I got selected. So they were like, okay, it's a good thing. So they were like, okay, for the final interview, you'll have to come again tomorrow at the head office of AirAsia India in Gurgaon. ठीक है. अब वही दिल में धक धक कि यार अब रिजेक्ट हो गए तो लेट्स स्किप टू दी फाइनल इंटरव्यू. अब क्या हुआ, द ड्रेस विच आई वोर yesterday, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, वही ड्रेस लकी नंबर समझ के, मेरा लकी कलर समझ के ना, मैंने वो पहना. एंड देन आई वेंट फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड. सेम ग्रूमिंग, नथिंग मच एंड ऑल. सो वी वर वेटिंग. ठीक है. And then my final interview happened. I went for the final interview. There were a lot of girls in my room, and I thought कि ज़्यादा लड़कियाँ होने से क्या होता है कि some get selected, some never get selected, and then you get back to home. ठीक है. तो मैं गई, and then my interview was taken by I don't remember the name of the person, or I think I should not tell particularly. Okay, so my final interview was taken by two people. Yes, two people. दो लोग बैठे थे मेरे सामने, and they were asking about the length of my hair and all. So they were like, you have very long hair. What if the company asks you to cut your hair? Because for now we have the policy that you can make a bun. But what if the policy changes? So I said, I don't care. I will cut my hair. That if that's what the company asks for, I will do it. Simple. So they got impressed, and then they were asking about the lenses. If this is my natural color of my eye. So I said, no, I have power, and my power is this, and I'm wearing contact lenses. So they were like, okay. And they were like, what if, because you know the base which you are giving interview for is Bangalore. Are you comfortable relocating to Bangalore? I said, yes, I am. And they were like, okay, so I can see that you are married. Would it be comfortable for your husband? I said, yes, he's supportive, so there won't be any kind of problem. So they were like, okay, so you'll leave your husband for the relocation. I said, if that's what the company asks for, then yes, I have to, because the job requirement is quite important than my personal life here. So they got impressed, and at that point I get to know that I am selected. वो intuition होता है ना, अंदर से आपको पता होता है that you are selected करके. तो मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था 2021 में, सितंबर में. I gave my interview. I don't remember the date. I gave my interview. I got selected. फाइनल राउंड में भी फाइनल राउंड में क्या हुआ था, वो लोग आए एकदम से ना सारे अंदर, उन्होंने कुछ लड़कियों को बाहर भेजा. फिर मुझे लगा कि हम लोग हो गए रिजेक्ट, ये लोग हो गए सेलेक्ट. उस दिन मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिली, हर नेम इज़ मानवी. तो हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे रूम के अंदर, एंड दे केम एंड दे वर लाइक, सॉरी, वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट यू गाइज did not get through the interview process, and the cooling period is of 6 months. After 6 months you can reapply for the same position in our company. And I was so disheartened. I was so disheartened that I was about to cry. So we started lifting up our bags, carrying our bags. ठीक है, मैंने बैग उठाया, सबने बैग उठाया. We started moving, and they were like, sit. We were kidding. We were joking around. We were fooling around. You guys are selected. Welcome to AirAsia India. And we were like, oh my God. And my best friend, she started crying. Okay? And she was crying, and I could not believe it that we got selected. Okay?
अब हम लोग इतना अंदर से खुश. I was so happy and my husband was not aware that I gave my interview in this airline because I was staying at my own home at that time with my mother. तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था. ठीक है, तो आई इन्फॉर्म्ड हिम ऑल्सो. ही वॉज वेरी हैप्पी. माई होल फैमिली वॉज हैप्पी एंड माई मदर वाज लाइक, देखा मैंने बताया था ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. तू ही यकीन नहीं कर रही थी और तुझे ही नहीं था. मैंने कहा ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज इंटरव्यू. आपको नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इसलिए. ठीक है, फिर इंटरव्यू कंप्लीट हो गया हमारा, हम सेलेक्ट हो गए. वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. देन वी वेंट फॉर द मेडिकल्स. यू विल हैव टू फिट टू फ्लाई. तो मेडिकल्स भी अच्छे से हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया. I was so happy, so happy. Then what happened, I got my date. 19th September was my joining date, so I had to travel on 18th September to Bangalore. I started packing everything, every important thing which I needed for Bangalore. So I started packing. Then sorry, there was a bug. So I was looking at it. तो हम लोगों ने पैक किया. Then we went to Bangalore and our training started. And then I started flying after 3 months of rigorous training. And yeah, that is how I became a cabin crew after a lot of rejections, after demotivations, after सुनने के बाद कि नहीं हो रहा, छोड़ दे, it is not something for you, I think it is not meant for you. But the reality or the thing is कि cabin crew is the only profession which is meant for me. I cannot do any other job or any other profession because I don't fit in there. I tried corporate sector also. I never liked it. I never liked 9 to 5 job where you have to sit in front of a computer, type, or where you have to be on a call, where you have to talk every time. I cannot do these kinds of job. Even I don't care how much the paycheck is or the salary is. I don't care. If I'm not enjoying my job, if I am not living it, if I am not living my life, then there's no point of doing something which you don't like. So yeah, cabin crew is the profession which makes me happy from inside out. So that is what I love to do. ठीक है, सो अब बात ये है, आपको पता चल गया कि मैं कैसे कैबिन क्रू बनी. सो द क्वेश्चन इज, जो मुझे आपसे पूछना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसका टॉपिक होगा कि आई एम नॉट इन एशिया नाउ. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू नो व्हाई आई लेफ्ट माय प्रीवियस कंपनी, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन. ठीक है, और अगर आपको किसी और चीज़ पे भी मेरा वीडियो देखना है, आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट्स ऑन हांगकॉन्ग लाइफ एंड ऑल. ठीक है, अभी रिसेंटली आई शिफ्टेड टू हांगकॉन्ग, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अबाउट दैट टू. तो अगर आपको जो भी सजेशन, मेरी ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, इफ़ आई वॉज ऑनेस्ट और नॉट, विच आई वॉज, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई बिकेम कैबिन क्रू एंड आई लव्ड टू बी वन, देन please do comment in the section. Do tell me how you feel, what you think I should have included in this video. Then after reading all of your comments and your ideas, I will make another video where I will tell you why I left my previous company and which company I joined. Okay, bye bye, see you in my next vlog. If you like my video, please do like, subscribe and share my video. See you in my next video. Bye bye.